Hello, welcome to Catch 25 Science Academy YouTube channel. I'm your host, mentor Pawan Bharadwaj. Welcome. This is MSCT 2021 सीरीज। आज हमारा टॉपिक है सर्कल। ऑलरेडी आप इसका फर्स्ट वीडियो आपने देख चुके होंगे। दिस इज माय सेकंड वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं। Now student, the product of the slopes of tangent from point P. Suppose this is circle, x square plus y square is equal to a square. Center is 0, 0, radius is a, and we are drawing two tangents from point P. This is local point x1, y1. Now student, always try to remember this type of equation: m square x1 square minus a square minus 2m x1 y1 plus y1 square minus a square is equal to 0 for this type of standard circle. आप बोलो सर आया कहाँ से? आइए वो भी समझा देता हूँ। हम जानते हैं टेंजेंट का इक्वेशन y is equal to mx plus c होता है, और फॉर अ सर्कल c का वैल्यू होता है प्लस माइनस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। अब जो टेंजेंट से x1 y1 से पास होते हैं तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस माइनस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो y1 माइनस mx1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस m स्क्वायर। सो इट विल बी y1 स्क्वायर माइनस 2m x1 y1 plus m square x1 square is equal to a square plus a square m square. Now m square common, so it will be x1 square minus a square minus 2m x1 y1 plus y1 square minus a square is equal to 0. ठीक है। अब ये this is a quadratic equation having two roots m1 and m2. So I will say alpha into beta m1 into m2 is constant term upon first term which is x1 square. What is m1 into m2? यहाँ पे दिया हुआ देखो product of slopes 4. तो 4 is equal to y1 square minus a square upon x1 square minus a square. तो 4x1 square minus 4a square is y1 square minus a square. तो 4x1 square minus y1 square यहाँ पे जाएगा तो आ जाएगा 4a square minus a square is 3a square. So equation of locus is 4x square minus y square is equal to 3a square. तो right answer is C. ठीक है। Come for next one. We want equation of a circle passing through 2, 1 and touching y-axis. अगर इक्वेशन को y एक्सिस को टच करना एट ओरिजिन 0, 0 तो कैसे टच होएगा? दिस इज द राइट वे। अब सेंटर यहाँ पर रहेगा। अगर ये रेडियस सपोज मान लो a है तो सेंटर क्या हो जाएगा? a, 0। और ये सबको एक रैंडम पॉइंट पकड़ लिया मैंने 2, 1। तो इक्वेशन सर्कल इन अ सेंटर रेडियस फॉर्म x minus a the whole square plus y minus 0 the whole square is equal to radius square. But circle is passing through 2, 1 तो x के बदले आ जाएगा 2 minus a the whole square. This is 1 minus 0 the whole square is equal to a square. तो आ जाएगा 4 minus 4a plus a square plus 1 is equal to a square cancel. Right? This is 5. 4 plus 1 5 is equal to 4. तो a is equal to 5/4. तो सर्कल का इक्वेशन क्या आ जाएगा? x minus 5/4 the whole square y minus 0 which is y square a is 5/4 मतलब 25 upon 16. तो कितना हो जाएगा इसमें? x square minus
2 इंटू एक्स इंटू 5/4 तो आ जाएगा 5x/2 प्लस 25/16 प्लस वाई स्क्वायर इज 25/16. ये और ये कैंसल, मल्टीप्लाई वर्ड विद 2 तो 2x² minus 5x plus 2y square is equal to 0. तो आंसर इज 2x square 2y square. ठीक है, अब ये भी चेक कर सकते हो शॉर्टकट मेथड में कि 2, 1 किसको सेटिस्फाई करता है. इसको देखो चेक करो. 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 और 5 2 जा 10 नहीं करता है. 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4, 4 इंटू 2 8. 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 8 प्लस 2 10 और 5 2 जा 10. इसको करता है सेटिस्फाई. इसको करता है नहीं करता है. यस, ये भी एक शॉर्टकट मेथड है और ये theoretical मेथड है. Now equation of circle which touches the line x is equal to 0, y is equal to 0 and this tangent. सीधी बात है 3x plus 4y is equal to 4. ध्यान से देखो, अगर मैं y को 0 डालता हूं तो x इंटरसेप्ट 4/3 which is positive, और अगर x को 0 डालता हूं तो y आ जाएगा 4/4 1 which is also positive. सीधी बात है x is equal to 0 मतलब y एक्सिस, y is equal to 0 मतलब x एक्सिस और टेंजेंट कुछ यहाँ पर है. तो सीधी बात है सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए ऐसा. और अपना ये टेंजेंट, ये क्या नाम है 3x 4y is equal to 4. ये कौन सा है x is equal to 0, ये y is equal to 0. ये सेंटर ए भी रेडियस है और सेंटर भी a, a. अब सेंटर से लेके टेंजेंट तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाते हैं तो कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम एज रेडियस. तो सेंटर a, a तो ये हो जाएगा इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो आंसर आ जाएगा 3a plus 4a minus 4 upon 9 plus 16. So 7a minus 4 25 which is 5. ये हो जाएगा 7a minus 4 modulus is 5. 7a minus 4 is plus minus 5. 7a minus 4 is 5. 7 minus 4 is minus 5. 7 minus 5 is 2. 2 is equal to 4. तो a का वैल्यू 2. यहाँ पे क्या है 7 plus 5 12 is equal to 4. तो a का वैल्यू 4/12 मतलब 1/3. तो a का वैल्यू क्या आ रहा है 1/3. स्टूडेंट ऑप्शन में देख सकते हैं. तो सेंटर क्या हो सकता है, पहले 2 ले लेते हैं. 2, 2 फिर हो जाएगा x minus 2 the whole square. y minus 2 the whole square is equal to 2 square. तो ये हो जाएगा x square plus y square minus 4x minus 4y. इसका कांस्टेंट टर्म प्लस 4, इसका भी कांस्टेंट टर्म प्लस 4 is equal to 4. आंसर इज x square plus y square minus 4x minus 4y plus 4. Yes. ओके, तो ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं. ठीक है, जब a इज इक्वल टू 2 मतलब ये डिस्टेंस कितना है 2. राइट. ओके, चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट सम. The point diametrically opposite to point 1, 0 on a circle. मतलब क्या बोलता है diametrically opposite. तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सर्कल है. सेंटर देखो क्या है, पहले चेक करो. सेंटर में क्या सिखाया है 2 and 4 का हाफ, 1 and 2 अपोजिट साइन, -1 -2. सब कोई सेंटर है.
सपोज पॉइंट P है, P सपोज P 1,0 diametrically opposite मतलब along the diameter this is Q. I can say A comma B. Now we know 1 plus A upon 2 is minus 1 and 0 plus B upon 2 is equal to minus 2. A का value minus 2 minus 1, A is minus 3 and B is cross multiply minus 4. So minus 3 minus 4, so which is the right answer? D, minus 3 minus 4. The equation of tangent to the circle which makes equal intercepts on the positive axis. Now ध्यान दो, whenever any line which makes equal intercepts on the positive axis, जैसे ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी इक्वल इंटरसेप्ट है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब स्लोप सेम रहेगा. अब आइए इस पे देखो, ये अगर इक्वल है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45, ये एंगल भी कितना 45, ये 90, ये 45 45 90, ये पूरा 180 होता है तो ये एंगल हो जाएगा 135. तो ये लाइन का स्लोप हो जाएगा tan 135 विच इज ऑलवेज -1. तो जब भी एग्जाम्स में रहेगा और एंट्रेंस में आएगा इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द पॉजिटिव एक्सिस, हर समय स्लोप ले लेने का -1. ठीक है, तो अपनी टेंजेंट का स्लोप कितना हो गया -1. तो हम लोग टेंजेंट को बोल सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो y इज इक्वल टू -x प्लस c, मतलब x प्लस y माइनस c इज इक्वल टू c. अब डायग्राम देखो, सपोज ये एक सर्कल है, सेंटर क्या आ गया देखो 4 और -4 का हाफ, 2 और -2, साइन चेंज -2 और 2. रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2f इज -4 तो -2 का स्क्वायर वो भी 4 और माइनस सी क्योंकि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कितना है 4 कट, तो रेडियस आ गया 2. ये टेंजेंट है और टेंजेंट का इक्वेशन दिया है. अब सी फाइंड करने का तरीका क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर टू द टेंजेंट इज इक्वल टू रेडियस. तो ये क्या हो जाएगा -2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला -2 प्लस 2 माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट x का 1 का स्क्वायर 1, y का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1. तो आंसर कितना आ गया, ये और एक कट. तो मॉडुलस ऑफ -c अपॉन √2 इज इक्वल टू 2. स्क्वायरिंग कर दो, अगर मॉडुलस से माइनस हटाना तो आ जाएगा c स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 4. तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 8. तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2. अब स्टूडेंट आप खुद लॉजिकली सोचो, सेंटर कहाँ पे है -2,2, रेडियस क्या है 2, सेंटर क्या है -2,2 और रेडियस क्या है, लॉजिकली सोचो 2. मतलब y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू रेडियस, सर्कल इज टचिंग x एक्सिस, सर्कल टचिंग x एक्सिस, क्योंकि रेडियस इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट है. देखो तो सर्कल टचिंग x एक्सिस ऐसा भी हो सकता है, पर क्या -2,2 है तो -2,2 ऑब्वियसली यहाँ पर आता, डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा. देखो समझने के लिए ये हो गया -2,2 रेडियस 2, राइट. अभी टेंजेंट है सपोज, ऐसा हो सकता है टेंजेंट, यहाँ पे y इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ जाए, ये टेंजेंट ऐसा भी हो सकता है. देखो बराबर. तो इस वाले का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू, राइट. एक मिनट, इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू -x प्लस
पॉजिटिव इंटरसेप्ट कितना है 2√2 और इसका हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स, नेगेटिव y इंटरसेप्ट है -2√2। आंसर क्या आ रहा है अपने पास? इसका आंसर आ रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2√2। इसका आंसर आ रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू -2√2। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला वाला राइट है, यस, ये है ही नहीं है, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, तो एक ही आंसर दिया, टेंशन नहीं।